Hello children, today I will explain to you the half portion of chapter 9 of your English reader book. The chapter name is The Golden Fish. Children, it is a Russian folk tale written by Alexander Pushkin and it was published in 1835. The tale is about a fisherman who manages to catch a golden fish which promises to fulfill any wish of his in exchange for its freedom. Okay, let's start the chapter. Once upon a time, on the island of when there stood a small tumble-down cottage, and in that cottage dwelt an old man and woman. They lived in great poverty. ये बहुत पहले की बात है। एक आइलैंड था जिसका नाम बुयान था। उधर एक झोपड़ी था जो कि टूटने लायक स्थिति में था। टम्बल डाउन मीन्स होता है ब्रोकन डाउन। और उस टूटते हुए घर में एक बूढ़ा आदमी और औरत रहते थे। वे लोग बहुत गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। The old man would cast his net and try to catch some fish, but all the fish he caught was barely enough to keep the body and soul together each day. One day the old man cast his net, began to haul it in and felt something heavy in it. Never had he felt the like before. He could hardly pull it in. Yet when he looked, he saw the net was empty except for a little fish. बूढ़ा आदमी अपने नेट को पानी में डालता था। किस लिए? फिश को निकालने के लिए। और उससे जो भी फिश निकलती थी वो उनके जीवन व्यतीत करने के लिए भी पूरा नहीं था। एक दिन बूढ़ा आदमी अपने जो जाल है, नेट जो था, मछली को पकड़ने का जाल जो था, वो पानी में डाला और उसमें थोड़ी देर बाद उससे कुछ भारी महसूस हुआ। और वो जब उस नेट को बाहर खींचा तो वो नेट में केवल एक छोटी मछली के सिवा उसमें कुछ नहीं था। But it was no ordinary fish. It was golden and spoke in a human voice. Don't take me, old man. Let me go back to the deep blue sea. I will be useful to you. I will do whatever you wish. The old man said to thinking. Then said, I need nothing from you. Go back and swim in the sea. तो वो फिश साधारण फिश नहीं था, वो गोल्डन फिश था। वो लोगों के ह्यूमन वॉइस में बात कर सकता था। वो बोला कि मुझे मत लो ओल्ड मैन, मुझे जो समुद्र के नीले पानी में मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे लिए यूजफुल होऊंगा। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम्हारी विश है। बूढ़ा आदमी सोचने लगा। फिर वो बोला कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ समुद्र में और तैरो। He threw the golden fish into the sea and returned home. The old man asked him how much he had caught. Nothing but a single golden fish, and that I threw back into the sea. He said, it spoke in a human voice. Let me go, it said, into the deep blue sea. I'll do whatever you wish. I was sorry for it, asked for not and set it free. फिर वो बूढ़ा आदमी उस गोल्डन फिश को पानी में छोड़ दिया और अपने घर वापस आया। जो बूढ़ी औरत थी तो उसके अपने पति के आने के साथ ही वो पूछी कि क्या लाए हो? तो बूढ़ा आदमी बोला कि मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, केवल एक गोल्डन फिश के सिवा, और मैं उसे वापस समुद्र में छोड़ आया। फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि वो तो ह्यूमन के वॉइस में बात कर सकता था और वो मुझे बोला कि मुझे छोड़ दो, और मैंने इसे छोड़ दिया
जो उसके विश थे, और मैंने इसके लिए सॉरी बोला और उसे छोड़ दिया। ओह यू ओल्ड डेविल, exclaimed his wife. Good luck falls from the skies and you haven't the sense to grab it. She grew angry and cursed the old man from morning till night, giving him no peace. तो उसके वाइफ बोली कि बेवकूफ, भगवान ने ऊपर से गुड लक भेजते हैं और तुम उसे पकड़ भी नहीं सकते। वो बहुत गुस्सा हुई और दिन रात, उस दिन पूरा दिन रात उसको कोसते रहे। You could have asked for bread at least, she yelled at him. You won't have a dry crust to eat soon. What will you do then? तो फिर वो बूढ़ी औरत बोली, तो कम से कम ब्रेड तो मांग सकते थे, हमारे पास जल्दी ही कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, फिर तुम क्या करोगे? In despair, the old man went down to the seashore to ask the golden fish for bread. Coming to the sea edge, he shouted in a loud voice, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." तो बूढ़ा आदमी फिर से समुद्र किनारे गया गोल्डन फिश से ब्रेड मांगने के लिए, और समुद्र के किनारे खड़े होकर वो जोर से चिल्लाया कि ओ फिश, तुम मेरे तरफ फेस करके सीधे खड़े हो, अपने टेल को नीचा करते हुए मेरे तरफ मुंह करके सीधा खड़े हो। The fish swam to the shore. What do you need, old man? It asked. The old man is angry and with me and has sent me for bread. Go home, we will have bread plentifully, said the fish. तो वो फिश जैसे ही आया तो उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए ओल्ड मैन? तो ओल्ड मैन बोला कि उसकी पत्नी मीन्स ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हुई और मुझे तुम्हारे पास भेजी कि ब्रेड मांगने के लिए। तो फिश बोले कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फिश होगा। So he went back home and asked his old man whether there was any bread. Bread, apparently. She replied, but my tub has sprung a leak and I can't do the washing. Go back to your golden fish and ask it for a new wash tub. तो वो घर में जैसे गया तो वो पूछता है अपनी वाइफ से, क्या कोई ब्रेड है? तो उसकी वाइफ बोलती है कि ब्रेड तो बहुत है, पर मेरे टब में लीक हो गया है जिसके कारण मैं उसे मांज नहीं सकती, तो इस कारण से तुम वापस जाओ गोल्डन फिश से एक नए वॉश टब को मांगो। Back went the old man to the sea. Fish, oh fish, he shouted, stand with your tail on the sea and your head facing me. Answered the golden fish, what do you need, old man? It asked. The old man sent me, she wants a new wash tub. तो फिर से ओल्ड मैन फिर से समुद्र के किनारे गया और फिर वही बात दोहराया कि फिश, ओ फिश, मेरे सामने आओ, मेरे तरफ मुंह करके खड़े होकर अपने पूंछ को नीचे करते हुए मेरे तरफ सीधे होके खड़े हो जाओ। तो गोल्डन फिश फिर से आई और पूछती है ओल्ड मैन से कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ओल्ड मैन बोलता है कि ओल्ड मैन जो है वो मुझे भेजे है एक नए वॉश टब मांगने के लिए। All right, you will have a wash tub too, it said. Back home went the old man, but before he had crossed the threshold, the old man set on him again. Go back, she said, to your golden fish and ask it to build as a new house. We can't live here anymore. It's falling about our ears.
तो फिश बोलते कि ठीक है, तुमको एक नया वाशटब भी मिलेगा। और जैसे वो ओल्ड मैन घर की तरफ गया और जैसे ही थ्रेशोल्ड को पार किया तो ओल्ड मैन बहुत गुस्साई हुई थी। वो बोले कि वापस जाओ गोल्डन फिश के पास और जाके बोलो एक नया घर बनाने के लिए, हम इस घर में नहीं रह सकते और ये गिरने वाला है। Off went the old man to the sea, calling, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." Up and the fish stood its tail on the sea and facing him directly, asking, "What do you need, old man?" "Build us a new house," he said. "The old man is angry and won't give me any peace. She says she won't live in the old cottage anymore because it's falling about her ears." "Cheer up, old man," said the fish. "Go on home and say your prayers. All will be done." तो ओल्ड मैन फिर से समुद्र के किनारे गया और फिर से चिल्लाया कि ओ फिश फिश, मेरे सामने आके अपने टेल के सहारे सीधे मेरे तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। और ये सुनते ही वापस से फिर से फिश आई और ठीक जैसे वो बोले थे वैसे ही टेल को नीचे करते हुए उसके तरफ देखते हुए खड़े हो गए और बोले कि तुमको क्या चाहिए ओल्ड मैन? तो ओल्ड मैन बोला कि मेरे लिए एक नया घर बना के दो। जो ओल्ड वुमेन है वो काफी गुस्साई हुई है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दी और बोले कि ये जो कॉटेज है इसमें और नहीं रहेंगे क्योंकि ये गिरने वाला है। तो फिश बोले कि खुश हो जाओ, दुखी मत हो, घर जाओ, प्रेयर करो और जो तुमको चाहिए वो मिलेगा। So the old man returned, and what should he see but a brand new house, and there was his old man rushing at him even wilder than before, cursing louder than ever. "Oh, you old fool, you don't know good luck when you stare it in the face. You ask for a house and think that's enough. No, you go back to that golden fish and tell it this: I don't want to be a fisherman's wife. I want to be a fine lady so that good folk do as I tell them and bow low when they meet me." और जैसे ओल्ड मैन वापस हुआ और वो देखता है कि एक बड़ा सा घर, एक नया घर, और जो ओल्ड वुमेन थी वो फिर से उसके तरफ दौड़ते हुए आ रही थी और पहले से ज्यादा गुस्साए उससे कोसती हुई बोली कि बूढ़े मूर्ख, तुमको नहीं पता कि गुड लक क्या होता है? तुमने एक घर मांगे और तुम समझते हो कि यही काफी है। नहीं, तुम वापस जाओ गोल्डन फिश के पास और फिर से इसे बोलो, मैं नहीं चाहती कि मैं एक फिशरमैन की वाइफ कहलाऊं। मैं एक फाइन लेडी, एक अमीर औरत बनना चाहती हूँ जिससे कि जो फॉलोअर्स है, जो नौकर चाकर है, वे मेरे सामने सिर झुकाए जब भी वे मेरे सामने आए। Back he went to the sea and said in a loud voice, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." Up swam the fish, stood its tail on the sea and faced him directly. "What do you need, old man?" it asked. "The old man gives me no peace," he said. "She's gone mad. She's tired of being a fisherman's wife. She wants to be a fine lady." "Very well, cheer up. Go home and say your prayers. All will be done."
फिर से फिशरमैन समुद्र के किनारे गया और फिर से जोर से चिल्लाया कि फिश ओ फिश, तुम मेरे सामने अपने पूंछ के सहारे सीधे खड़े हो जाओ, मेरे तरफ फेस करते हुए। ये सुनते ही फिश वापस आई और जैसा बोले थे फिशरमैन ठीक वैसे ही खड़े हो गई और पूछे कि क्या चाहते हो ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन कहते हैं कि ओल्ड मैन जो है उसे कुछ भी खाने के लिए मीन्स एक पीस ब्रेड भी नहीं दी। और फिर वो बोलती है कि वो पागल हो गई है, वो टायर्ड हो गई है फिशरमैन के वाइफ कहलाने से, वो एक फाइन लेडी बनना चाहती है। तो फिश बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, दुखी मत हो, घर जाओ और तुम अपने इस बात को प्रेयर में बोलो और तुम्हारा प्रेयर जरूर सुना जाएगा। So the old man went home and was surprised to see a big stone house in place of his hut, rising up 3 floors with servants running about in the yard, cooks in the kitchen, and his old man sitting on a high chair in a rich brocade dress, giving orders. "Hello, wife," the old man said. "What impudence!" the lady cried. "How dare you address me, a fine lady, as your wife? Servants, take that silly old man to the stable and give him 40 lashes till he is sore." फिर ओल्ड मैन फिर से घर गया और वो देखा कि उसके हट के जगह एक बहुत बड़ा स्टोन का बंगला जो कि 3 मंजिला था, जिसमें सर्वेंट इधर उधर दौड़ रहे थे, किचन में कुक था और जो ओल्ड मैन थे वो एक बड़े से चेयर में बैठी हुई थी, ब्रोकेट के ड्रेस पहने हुए और ऑर्डर दे रही थी। और ओल्ड मैन ने जैसे कहा कि हेलो वाइफ, ये सुनते ही लेडी बहुत गुस्सा हुई और बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी वाइफ कहने के लिए, और अपने सर्वेंट को ऑर्डर दी कि इसे घुड़साल में ले जाके 40 कोड़े मारो जब तक कि उसे दर्द महसूस न हो। Right away the servants came running in, seized the old man by the scruff of the neck and hauled him off to the stable. There he got such a thrashing that he could barely stand. ये ऑर्डर सुनते ही सर्वेंट आए और ओल्ड मैन को उसके पीछे नेक के सहारे पकड़े और घुड़साल में लेके गए और उसे ऐसा पिटाई किए कि ओल्ड मैन को खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। I think, student, up to this portion of the story you have understood